Hello, my dear student. I, Professor Harshal Nikam, welcome you all in third lecture of unit number 5, which is based on types of IC voltage regulators. So let's start with some course outcome and its PO mapping. This slide shows the course outcome and its PO mapping. The course outcome for this our today's lecture is maintain IC voltage regulator and SMPS, and its course and PO mapping is this, means this 10 number of POs is mapped with this course outcome at a level like PO1, which is related to the basic knowledge, is mapped at a level 1. Discipline knowledge is mapped at a level 3. Similarly, the lifelong learning, which is PO number 10, is mapped at a level 1. So let's start with our today's topic, that is ICLM 317. Here, this slide shows the learning outcome of today's session. Means, after completing our today's session, you all are able to achieve or to draw the functional block diagram of LM317, write features of ICLM317, and draw and explain फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ICLM317। मतलब आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोग फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम LM317 की ड्रॉ कर सकते हो, उसके फीचर लिख सकते हो और फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हो। Before going into detail about the ICLM317, you must to know some prerequisite knowledge। मतलब आज हम जो LM317 के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसको डिटेल में पढ़ने के पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि टाइप्स ऑफ आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, यानी आईसी वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, उसके बारे में। प्रीवियसली हमने फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर जैसे IC 78XX, 79XX, देन उसके बाद IC 723, इसके बारे में हमने पढ़ा है, और आज हम IC LM317 के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी पावर सप्लाई, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ब्लॉक डायग्राम आपको पता होना ज़रूरी है डीसी पावर सप्लाई के। जैसे ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट होती है ट्रांसफार्मर से, देन उसके बाद रेक्टिफायर, देन फिल्टर एंड देन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट और आईसीज। This slide shows the ICLM317 3-terminal adjustable regulator. Here it shows the pin configuration of ICLM317. See, this is the third pin of this ICLM317. This is first pin of ICLM317 and this is the second pin of ICLM317. Here it shows here a particular potentiometer is connected, means it is a adjustable voltage regulator circuit, means by using this potentiometer we can adjust the voltage or vary the voltage of ICLM317. Here it shows the pin number of ICLM317. This is the package, metal package of LM317. This is pin number 1, pin number 2 and pin number 3. Pin number 1 is used for to adjust the variable voltage, means this potentiometer, by using this potentiometer we can adjust a variable voltage. Pin number 2 means this is pin number 2, this is pin number 2. By using this pin number 2 we can take the output voltage, and this is pin number 3. This pin number 3 is used for to provide the input voltage. And one more point is important, heat sink is connected to pin number 2, means due to some thermal condition or over voltage protection,
this IC may heat up. So by avoiding this problem, we can use a heat sink at a pin number 2. यहाँ से हम इनपुट वोल्टेज देंगे, इनपुट वोल्टेज यहाँ से अप टू मैक्सिमम 28 वोल्टेज देंगे, तो ये डायरेक्टली जाएगा पिन नंबर 3 को, जो पिन नंबर 3 मतलब है अपनी इनपुट वोल्टेज कनेक्ट। यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट किया है। पिन नंबर 1 हम यूज करते हैं एडजस्ट करने के लिए वेरिएबल वोल्टेज, और पिन नंबर 2 से हम लेते हैं आउटपुट वोल्टेज। सो दिस पर्टिकुलर slide it shows the pin configuration circuit of IC317. The next important point is IC-LM317 functional block diagram. Now here it shows the functional block diagram of IC-LM317. यानी IC वोल्टेज रेगुलेटर में उसके ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्लॉक होते हैं, तो यहाँ पे हमने मेंशन की है, और ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन भी देखा है। तो पिन कॉन्फ़िगरेशन में हमने पर्टिकुलरली ये देखा था कि IC-LM317 इट हैज़ 3 पिन्स ओनली। तो यहाँ पे हमने दिस इज पिन नंबर 1, दिस इज पिन नंबर 2 एंड दिस इज पिन नंबर 3। तो पिन नंबर इज रिलेटेड टू द वोल्टेज एडजस्टमेंट। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि IC-LM317 हैज़ ओनली 3 पिन्स, उसमें से पिन नंबर 1 जो होती है वो होती है वोल्टेज एडजस्टमेंट के लिए, पिन नंबर 2 होती है आउटपुट के लिए, और पिन नंबर 3 होती है इनपुट के लिए। यानी अपन जो भी ब्लॉक डायग्राम का अगर एग्जांपल देखते हैं डीसी पावर सप्लाई के, तो जो फिल्टर से आउटपुट जो आएगा वो इस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के लिए रहेगा इनपुट। तो पिन नंबर 3 जो रहेगा वो रहेगा कनेक्ट इसको फिल्टर को, और पिन नंबर 1 अपन एडजस्ट करने के लिए यूज करेंगे, और पिन नंबर 2 से अपने को मिलेगा कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, लेकिन वेरिएबल अपन ले सकते हैं यहाँ पे। नाउ अभी अपन इस फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं कि द इंपॉर्टेंट ब्लॉक इज वोल्टेज रेफरेंस, देन हियर प्रोटेक्शन सर्किट, एंड दिस इज द डार्लिंगटन पेयर ऑफ एम्पलीफायर और डार्लिंगटन पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर। यानी ये एक ट्रांजिस्टर है बीजेटी और ये दूसरा ट्रांजिस्टर है बीजेटी, इनको मैंने कनेक्ट किया है डार्लिंगटन पेयर कॉम्बिनेशन में, और इसी को अपन बोलेंगे सीरीज पास ट्रांजिस्टर। ओके, दिस वोल्टेज रेफरेंस इंटरनली ये ब्लॉक जनरेट करेगा एक पर्टिकुलर वोल्टेज जो कि कंपेयर होगा इस इनपुट वोल्टेज के द्वारा, और इन दोनों का कंपैरिजन ये एम्पलीफायर करेगा, और वो कंपैरिजन होने के बाद जो भी एरर वोल्टेज जनरेट होगा वो एरर वोल्टेज डायरेक्टली पास होगा इस डार्लिंगटन पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर को। तो जैसे ही इधर से वोल्टेज अगर आता है तो ये जो कॉम्बिनेशन है डार्लिंगटन पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर की, ये ड्राई होंगी मतलब ये क्या होगा, ऑन हो जाएंगे,
और पर्टिकुलरली यही ट्रांजिस्टर एडजस्ट करेंगे कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करने के लिए। और यहाँ पे ये इस एमिटर टर्मिनल को, इस ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल को क्या है, पिन नंबर ऑफ 2 ऑफ IC317। तो यहाँ से अपने को आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द कांस्टेंट वेरिएबल वोल्टेज। तो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर जो अपन बना सकते हैं IC LM317 से। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC LM317। सो दिस इज रिगार्डिंग ओनली फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC317। Here the important point about the IC LM317 is the block diagram of LM317 is shown above। ये हमने ऑलरेडी देखा है। It consists of series regulator and Darlington pair। इसमें सीरीज रेगुलेटर होता है और डार्लिंगटन पेयर। थर्ड, आउटपुट वोल्टेज इज कंपेयर विथ इंटरनली जनरेटेड रेफरेंस वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज ये कंपेयर करेगा इंटरनली जनरेटेड रेफरेंस वोल्टेज से टू प्रोड्यूस एरर वोल्टेज विच विल ड्राइव द डार्लिंगटन पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर टू रेगुलेट द वोल्टेज। यानी जो एरर वोल्टेज होगा उस एरर वोल्टेज से अपना ड्राइव होगा डार्लिंगटन पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर, जो कि रेगुलेट करेगा आउटपुट वोल्टेज को। एंड हियर I will give the one formula regarding the output voltage, which is equal to voltage reference in bracket 1 plus R2 upon R1 bracket complete plus I adjustable, मतलब adjustable current into R2। This is very helpful for to calculate the VO। Here it shows the one problem how to calculate the output voltage। The problem is for the adjustable voltage regulator shown in below, calculate the output voltage। Assume I adjustable equal to 100 microampere। मतलब ये जो आपको एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर दिया है, जो IC हमने यहाँ पे यूज की है LM317। दिस इज इनपुट वोल्टेज, दिस इज आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू दी गई है 2 किलो ओम, यहाँ पे रेजिस्टर 240 ओम, यहाँ पे R1 और 10 माइक्रो फैरेड का ये यहाँ पे कैपेसिटर है। आपको इस डायग्राम के रिलेटेड आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ओके, एडजस्टेबल वोल्टेज, एडजस्टेबल करंट अपने को दिया है 100 माइक्रो एम्पियर। तो कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हियर इट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले यहाँ पे लिखना जरूरी है, गिवन I एडजस्टेबल अपने को 100 माइक्रो एम्पियर में दिया है। R1 की वैल्यू डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन की गई है 240 ओम, R2 की वैल्यू मेंशन की गई है 2 किलो ओम, और वोल्टेज रेफरेंस की वैल्यू 1.25 वोल्ट यहाँ पे दी गई है। टू पॉइंट VO, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। VO इक्वल टू V रेफरेंस इन ब्रैकेट 1 प्लस R2 बाय R1 प्लस I एडजस्टेबल इंटू R2। तो V रेफरेंस की वैल्यू है 1.25, यहाँ पे अपन ने पुटअप की 1 प्लस R2 की वैल्यू अपन ने पुटअप की 2 किलो ओम, और R1 की वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुटअप की 240 ओम, प्लस I एडजस्टेबल 100 माइक्रो एम्पियर, मतलब 100 इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁶ इंटू R2 की वैल्यू है 2 किलो ओम, 2 इंटू 10⁻3। तो पूरे वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने के बाद हमारा फाइनल सोल्यूशन मिलेगा VO इक्वल टू 11.86 वोल्ट। सो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट, VO इक्वल टू 11.86 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम कोई भी सर्किट यानी IC LM317 से हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। Thank you so much for listening this lecture very carefully। I hope you understand well about the features of IC LM317, then functional block diagram of IC LM317 and its explanation। Thank you so much। In next lecture we will discuss about SMPS।